Hello dear friends, welcome back to my channel of literary art, and our today's discussion topic is an American author, Anton Chekhov, and he has written one short story which is called as Misery. So friends, through this uh, uh, short story he has given us one important message or theme that nowadays we are living in our own world, thinking about our own pleasures. We are just not thinking about the people uh, who are going through the bad times. They need our mental or moral support. So friends, sometimes we have to think about the misery of other people also. We have to share their grief. That means कभी कभी हम हमें दूसरों के दुखों में भी शामिल हो जाना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपना दुख हमें शेयर करना चाहते हैं, उनको सुनने की, उनको टॉलरेट करने की और उनको कंपैशन प्रोवाइड करने की मेंटल स्ट्रेंथ जो है हम में होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। वी हैव नो टाइम टू show compassion or generosity to the people who are passing through the bad times. इसका मतलब ये है कि जो लोग दुख भरी परिस्थिति में हैं, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, उनका कोई भी दुख हम शेयर नहीं करना चाहते हैं और उनके लिए हमारे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। तो इससे अच्छा तो हमारे घर के जो पेट एनिमल्स हैं वो है, क्योंकि शायद हम उनको हमारी बात समझा सकते हैं और अपना दुख उन्हें और शेयर कर सकते हैं, और वो जो पेट एनिमल्स हैं वो हमारी बात सुनते हैं, शायद रिएक्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन शायद समझ जाते हैं। तो यही बात उन्होंने हमें इस शॉर्ट स्टोरी से समझाई है, जो कि उनका प्रोटैगनिस्ट है इयोना, उसके थ्रू हमें ये बात उन्होंने समझाई है। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो हमें सिलेबस में है SYBA कंपलसरी इंग्लिश के पेपर के लिए। सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू the people who are watching this video to like, share and subscribe this video. Please like, share and subscribe. Let us see the short story Misery by Anton Chekhov. Misery by Anton Chekhov. Friends, first of all we shall see the short description or introduction to the author Anton Chekhov, and later on we shall see the short story Misery by him. So friends, एंटन चेखव जो है वो एक रशियन ऑथर है और उनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 में रशिया में, और उनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर प्लेराइट और मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी उन्हें कहा जाता है। बहुत ही अच्छे प्लेराइट थे वो और मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी थे। ही वॉज अ लिटरेरी आर्टिस्ट ऑफ laconic precision who probed below the surface of life. Friends, he is known for the principle in drama called Chekhov's gun. उनके जो कुछ वर्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उन्हें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। See how he looks, Anton Chekhov. One picture of him I have uploaded here. उनके नोटेबल वर्क्स हम देखेंगे। A dreary story, Ivanov, Peasants, The Bear, The Black Monk, The Cherry Orchard, The Seagull, Three Sisters, Uncle Vanya, Ward Number 6, Wood Demon. So his wife was Olga Nipper,
Chekhov, we can call her. So, friends, this is about the short introduction of the संक्षिप्त में एंटन चेखव जी का हमने यहाँ पे परिचय देने की कोशिश की है. फ्रेंड्स, अबाउट द ऑथर. सो अब हम उनकी जो मिजरी नाम की स्टोरी है वो सुनते हैं. यहाँ पे उन्होंने एक कैरेक्टर मेंशन किया है जिनका नाम है इयोना पोटैपो. सो फ्रेंड्स, I shall read and then explain. You can see what was his profession and how hard his life was. That means so many hardships he has to carry on along with his profession. We must have to understand his condition and we must feel pity for that person. At least we have to share his grief. And that was the one message which the author wants to convey here. But nowadays, we do not think about the pathetic situations about the others or misery of the others. लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोज का. सो फ्रेंड्स, सी मिजरी बाय एंटन चेखव. द ट्विलाइट ऑफ इवनिंग, big flakes of wet snow are whirling lazily about the street lamps, which have just been lighted and laying in a thin soft layer on roofs, horses, backs, shoulders, caps. Iona Potapo, the sledge driver, is all white like a ghost. He sits on the box without stirring, bent as double as the living body can be bent. If a regular snowdrift fell on him, it seems as though even then he would not think it necessary to shake it off. His little mare is white and motionless too. Her stillness, the angularity of her lines, and the stick-like straightness of her legs make her look like a half-penny gingerbread horse. She is probably lost in thought. Anyone who has been torn away from the plough, from the familiar grey landscapes, and cast into this law full of monstrous lights of unceasing uproar and hurrying people is bound to think. Friends, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया है जिसमें आप इयोना के कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं. यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और उसकी वो जो इयोना जो है वो एक स्लेज ड्राइवर है. वो एक गाड़ी चलाता है पैसेंजर्स के लिए और वी कैन कॉल इट टांगा आल्सो. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. तो वो एक स्लेज ड्राइवर है और स्नोफॉल की वजह से उसे बहुत ही ठंड महसूस हो रही है. तो वो किस तरह से बेंड हो गया है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. और उसकी घोड़ी जो है द मेयर, वो भी स्नोफॉल की वजह से वाइटेस्ट वाइट हो गई है और मोशनलेस है. बहुत ही स्टिफ हो गए हैं उसके पूरे बोन्स और वो फिर भी वहाँ पे खड़ी है. तो फ्रेंड्स, you can think about the condition of Iona and his mare in this severe snowfall. आगे देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे किया है. इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस इयोना एंड हिज नैग हैव बज्ड. दे केम आउट ऑफ द यार्ड बिफोर डिनर टाइम एंड नॉट अ सिंगल फेयर एट. But now the shades of evening are falling on the town. The pale light of the street lamps changes to a vivid color and bustle of the street grows noisier. Sledge to Waberowski, Iona hears. Sledge Iona starts, and through his snow-plastered eyelashes sees an officer in a military overcoat with a hood over his head. Waberowski, repeats the officer. Are you asleep? To Waberowski. So यहाँ पे हमें जो इयोना का कैरेक्टर है वो अपने स्लेज के साथ वहाँ पे वेट कर रहा है
शायद उसे इस स्नोफॉल में भी कोई पैसेंजर मिल जाए जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, थोड़ा बहुत वो पैसा कमा ले। तो इसके लिए वो पैसेंजर्स का वेट कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो इयोना है, ही इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। और वो जो है वो एक ओल्ड मैन है जो अपने अर्निंग के लिए स्लेज चलाता है। तो वो यहाँ पे एक पैसेंजर्स के लिए वेट कर रहा है जिसकी वजह से उसे कुछ पैसे मिल जाए। तो एक पैसेंजर वहाँ पे आता है। दैट पैसेंजर वॉज वियरिंग द मिलिट्री ओवरकोट। वो पैसेंजर जो है वो मिलिट्री ओवरकोट पहने हुए हैं, उसके ऊपर एक टोपी भी है ओवरकोट के ऊपर। और वो बोलता है कि वैब्रोस्काई जाना है क्या, वैब्रोस्काई जाएंगे क्या, ऐसा बोल रहा है। वो पूछ रहा है इयोना से। तो इन टोकन ऑफ असेंट इयोना गिव्स a tug at the reins, which sends cakes of snow flying from the horse's back shoulders. The officer gets into the sledge. The sledge driver clicks to the horse, cranes his neck like a swan, rises in his seat, and more from habit than necessity, brandishes his whip. The mare cranes her neck too, crooks her stick like legs, and hesitatingly sets off. Where are you showing, you devil? Iona immediately hears shouts from the dark mass shifting to and fro before him. Where the devil are you going? Keep to the right. You don't know how to drive. Keep to the right, says the officer angrily. फ्रेंड्स, ये जो ऑफिसर बैठा है, मिलिट्री ऑफिसर, तो वो उसमें बैठा है और बैठ के वो इयोना को बोल रहा है कि तुम्हें किस तरह से गाड़ी चलानी है पता नहीं है क्या। वो जो स्लेज वो अपने घोड़ी के सहारे से चला रहा है, तो किस तरह से उसे चलाना है तुम्हें पता नहीं है क्या। वो क्या बोल रहा है देखिए, वेयर द डेविल आर यू गोइंग, कीप टू द राइट, राइट साइड से चलाओ। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू द राइट। वो बोल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है ये कैसे चलाना है, राइट साइड से चलाना है। बहुत ही गुस्से में वो इयोना को ये सब बातें बता रहा है। A coachman driving a carriage swears at him. A pedestrian crossing the road and brushing the horse's nose with his shoulder looks at him angrily and shakes the snow off his sleeve. Iona fidgets on the box as though he were sitting on thorns, jerks his elbows, and turns his eyes about like one possessed as though he did not know where he was or why he was there. What rascals they all are, says the officer jocosely. They are simply doing their best to run up against you or fall under the horse's feet. They must be doing it on purpose. Iona looks as his fair and moves his lips. Apparently, he means to say something, but nothing comes but a sniff. What? Inquires the officer. Iona gives a wry smile and, straining his throat, brings out huskily, My son died this week, sir. So, इयोना अपनी गाड़ी चला रहा है, घोड़ा गाड़ी है, या फिर हम उसे टांगा भी कह सकते हैं। तो वो अपना टांगा चला रहा है और ये जो मिलिट्री ऑफिसर है बहुत ही गुस्से वाला है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें ठीक से चलाना नहीं आता है, ठीक से चलाओ। बहुत से लोग उसके पास से जा रहे हैं, लेकिन उसे मिलिट्री ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उसे ओवरटेक करके जा रहे हैं। उसकी जो गाड़ी है और टांगा है वो बहुत ही स्लो है, तो वो उसे हर बार यही बताना चाहता है। लेकिन इयोना के मन में कोई और ही बात है जो कि वो उस मिलिट्री ऑफिसर को शेयर करना चाहता है। अब यहाँ पे हमें उसकी मेंटेलिटी समझनी चाहिए, हमें इयोना की मेंटेलिटी समझनी चाहिए कि उसकी दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि वो जो भी पैसेंजर इस गाड़ी में बैठेगा उसको मैं अपना जो दुख है उसको शेयर कर दूंगा। ये उसने बहुत पहले ही
तय कर लिया था, या फिर वी कैन से दैट ही हैड प्लान दैट whoever the passenger sits in his sledge, he will share his grief to that person or to that passenger. But उसने ये नहीं सोचा था कि वो पैसेंजर भी उसका दुख सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं. लेकिन अगर हम इस मिलिट्री ऑफिसर को देखें तो वो भी अपनी ही सोच में व्यस्त है और उसे जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पर. और इयोना जो है वो खुद की ही बात समझ रहा है. वो सोच रहा है कि कब मैं उसे अपना दुख शेयर करूं या फिर अपना ग्रीफ शेयर करूं. तो वो मिलिट्री ऑफिसर उसे गुस्से में कुछ बोल रहा है, उसकी तरफ इयोना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. लेकिन वो कहता है कि सर, माय सन डाइड दिस वीक. मेरा जो बेटा है वो इस हफ्ते में एक्सपायर हो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है. What did he die of? Iona turns his whole body round to his fare and says, who can tell? It must have been from fever. He lay 3 days in the hospital and then he died. Goodwill, turn round, you devil, comes out of the darkness. Have you gone cracked, you old dog? Look where you are going. Drive on, says the officer. We shall not get there till tomorrow. Going on like this, hurry up. We shall not get there till tomorrow. Going on like this, hurry up. The sledge driver cranes his neck again, rises in his seat and with heavy grace swings his whip. Several times he looks round at the officer, but the latter keeps his eyes shut and is apparently disinclined to listen. Putting his fare down at Vibrovsky, Iona stops by a restaurant and again sits huddled up on the box. Again the wet snow paints him and his horse white. 1 hour passes and then another. So friends, अब जो ये मिलिट्री ऑफिशियल है वो उसे बताता है कि तुम्हारा जो स्लेज है बहुत ही स्लो चल रहा है. अगर इस तरह से तुम अपनी गाड़ी चलाओगे तो हम मेरी डेस्टिनेशन पे शायद कल ही पहुंच जाएंगे. सो ड्राइव इट फास्ट. और ऐसा सुनने के बाद जो इयोना है वो अपनी जो बात बताने जा रहा था कि मेरा बेटा डेड हो गया है और उसके मरने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ है, ये सब बताने वाला था. लेकिन अब वो इस मेंटालिटी में नहीं है कि वो अपनी बात उस मिलिट्री ऑफिशियल को शेयर करे, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि वो जो ऑफिशियल है वो उसकी बात समझने की मेंटालिटी में नहीं है. इसलिए वो चुप हो जाता है और अपना जो स्लेज है वो दौड़ाता है और जल्द ही वाइब्रोस्काई जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाता है. उसके रेस्टोरेंट के सामने वो पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे उसका जो पैसेंजर है वहाँ उतर जाता है. और कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद फिर से उसका जो टांगा है या फिर स्लेज है और उसकी जो मेयर है और वो खुद भी, इयोना खुद भी पूरा वाइट हो जाता है ड्यू टू द स्नोफॉल. सो 3 young men, 2 tall and 1 thin, 1 short and hunchbacked, come up railing at each other and loudly stamping on the pavement with their goloshes. Cabby to the police bridge. The hunchback cries in a cracked voice, the 3 of us, 20 kopecks. Iona tugs at the reins and clicks to his horse. 20 kopecks is not a fair price, but he has no thoughts for that. Whether it is a ruble or whether it is 5 kopecks does not matter to him now, so long as he has a fare. The 3 young men, shoving each other and using bad language, go up to the sledge, and all 3 try to sit down at once. The question remains to be settled, which are to sit down and which one is to stand. After a long altercation,
Ill temper and abuse, they come to the conclusion that the hunchback must stand because he is the shortest. सो फ्रेंड्स, उस मिलिट्री ऑफिशियल को छोड़ने के बाद अब वो दूसरा पैसेंजर ढूंढता है और दूसरा पैसेंजर जो है उसे मिल जाता है। ये अब एक 3 यंग मैन है जो कि उसमें से 2 जो है बहुत ही लंबे हैं, 2 आर टॉल एंड 1 इज थिन एंड शॉर्ट। शॉर्ट है बिकॉज ही इज हंचबैक्ड। तो अब ये 3 लोग जो है उस स्लेज में नहीं बैठ पा रहे हैं। वो दे आर जस्ट pushing to each other, and they are not deciding that who will stand and who will sit, but the 2 tall men decide that the 2 tall will sit and the hunchback will stand because he is quite short at his length. जो हंचबैक्ड है वो खड़ा रह जाता है स्लेज में, और जो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, जो 2 लोग हैं, वो बैठ जाते हैं और वो अपनी ही बात कर रहे हैं। जो दे आर स्पीकिंग द बैड वर्ड्स टू ईच अदर, और इस कंडीशन में वो बैठ जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। Well, drive on, says the hunchback in his cracked voice, settling himself and breathing down Iona's neck. Cut along. What a cap you have got, my friend. You would not find a worse one in all Petersburg. Hey, 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 laughs Iona. It's nothing to boast of. Well then, nothing to boast of. Drive on. Are you going to drive like this all the way? Yeah. Shall I give you one in the neck? My head aches, says one of the tall ones. At the Duck Masvo, yesterday Vaska and I drank 4 bottles of brandy between us. I can't make out why you talk such stuff, says the other tall one angrily. You lie like a brute. Strike me dead, it's the truth. So, ये आपस में बात कर रहे हैं 3 जो लोग बैठे हैं स्लेज में। तो उनमें से एक अब जो इयोना है, इयोना की थोड़ी सी मजाक उड़ाता है और बोलता है कि ये जो कैप है तुमने कहाँ से खरीदी है? पूरे पीटर्सबर्ग में इससे ज़्यादा खराब कैप नहीं मिल सकती है। तो वो हंसने लगता है, इयोना हंसने लगता है और वो बोलता है कि ठीक है, नथिंग, इट्स नथिंग टू बोस्ट ऑफ। वेल देन, नथिंग टू बोस्ट ऑफ। और वो एक दूसरे को बहुत ही स्टैंडर्ड समझने लगते हैं, बहुत ही अच्छे समझने लगते हैं और बोलते हैं कि हमने लास्ट नाइट क्या किया है, यस्टरडे क्या किया है कि हमने 4 बॉटल्स ब्रांडी की शेयर करके पी ली है। तो ये सब बातें उनकी हो रही थी। तभी देखो, इयोना इज थिंकिंग दैट मिलिट्री ऑफिशियल हैड नॉट हर्ड हिम और हर्ड हिज ग्रीफ। मिलिट्री ऑफिशियल जो बैठा था इनसे पहले, उसने तो इयोना की बात नहीं सुनी थी, उसका जो ग्रीफ था वो शेयर करने नहीं दिया था। शायद ये 3 लोग में से कोई सुन ले, इसका वो इंतज़ार कर रहा था। वो सोच ही रहा था कि कब मैं उनको मेरा अपना ग्रीफ या दुख शेयर करूं। इट्स अबाउट एज ट्रू एज दैट लाउज कफ्स। हे हे, ग्रीन्स इयोना, मैरी जेंटलमैन, टूफो, the devil take you, cries the hunchback indignantly. Will you get on, you old plague? Or won't you? Is that the way to drive? Give her one with the whip. Hang it all, give it her well. Iona feels behind his back the jolting person and quivering voice of the hunchback. He hears abuse addressed to him. He sees people, and the feeling of loneliness begins little by little to be less heavy on his heart. तो यहाँ पे जो ये 3 लोग उसके स्लेज में बैठे हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो लोग हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत ही बुरी तरह से उससे बात कर रहे हैं, इयोना से।
तो योना तो अपनी ही सोच में व्यस्त है। वो सोच रहा है कि मैं कब इनको अपनी बात बताऊं, और वो बस ये देख रहा है कि कोई उसकी बात समझ भी ले पाता है या नहीं। तो वो शुरू करता है कि दिस वीक और माय सन डाइड। तो वो बोलता है कि इस हफ्ते में क्या हुआ है कि मेरा जो बेटा है वो डेड हो गया है। We shall all die, says the hunchback with a sigh, whipping his lips after coughing. Come, drive on, my friends. I simply cannot stand crawling like this. When will he get us there? Well, you give him a little encouragement, one in the neck. Do you hear, you old plague? I will make you smart. If one stands on ceremony with fellows like you, one may as well walk. Do you hear, you old dragon? Or don't you care a hang what we say? And Iona hears rather than feels a slap on the back of his neck. Hey, hey, he laughs. Merry gentleman, God give you health. Cabman, are you married? Asks one of the tall ones. तो यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो हंचबैक जो है बोल रहा है कि अगर इस स्पीड से तुम अपनी गाड़ी चलाओगे तो शायद हम हमारे डेस्टिनेशन पर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। तो तुमको क्या करना है, अपना स्पीड बढ़ाना है। तुम्हारा स्पीड बढ़ाने के लिए इंस्टेड ऑफ गिविंग वन टू योर मेयर, आई शैल गिव यू वन स्लैप ऑन योर नेक। ऐसा बोलता है। एक स्लैप जो है जो तुम्हारे घोड़ी को देनी चाहिए वो मैं तुम्हारे पीठ पे देता हूँ या फिर नेक पे देता हूँ, वो ऐसा बोलता है। और एक उस स्लैप वो इयोना के नेक पे देता है। लेकिन इयोना इस बात को मजाक में लेता है और वो बोलता है कि मेरी जेंटलमैन, गॉड गिव यू हेल्थ। वो बोलता है कि गॉड गिव यू हेल्थ, दैट मीन्स देन ऑल्सो ही ब्लेस्ड हिम। So, hey, hey, merry gentlemen, the only wife for me now is the damp earth, the grave that is. Here my son is dead, and I am alive. It's a strange thing. Death has come in at the wrong door. Instead of coming for me, it went for my son. तो वो यहाँ पे अपनी बात शुरू कर देता है इयोना, और वो उन लोगों को बताता है कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, अब एक ही वाइफ है जो है कि मदर अर्थ। तो वो बोलता है कि इंस्टेड ऑफ माई डेथ, द डेथ ऑफ माई सन हैज़ हैपन्ड, दैट मीन्स मुझे मरना चाहिए था लेकिन मेरा बेटा जो है वो डेड हो गया है। ऐसा वो यहाँ पे बोलता है उन 3 पैसेंजर्स को। एंड इयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाइड, बट एट दैट पॉइंट द हंचबैक गिव्स अ फेंट साई एंड अनाउंसेस दैट थैंक गॉड they have arrived at last after taking his 20 kopecks. Iona gazes for a long while after the revelers, who disappear into a dark entry. Again he is alone, and again there is silence for him. The misery which has been for a brief space eased comes back again and tears his heart more cruelly than ever. With a look of anxiety and suffering, Iona's eyes stray restlessly among the crowds moving to and fro on both sides of the street. Can he not find among those thousands someone who will listen to him? But the crowds flit by heedless of him and his misery. His misery is immense, beyond all bounds. If Iona's heart were to burst and his misery to flow out, it would flood the whole world, it seems, but yet it is not seen. It has found a hiding place in such an insignificant shell that one would not have found it with a candle by daylight. तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिया है इयोना के ग्रीफ का। अब वो बताने जा रहा था कि मेरा जो बेटा है वो डेड हो गया है, लेकिन तभी क्या हो जाता है कि इन 3 पैसेंजर्स का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर इयोना का टांगा पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद
वो तीनों पैसेंजर वहाँ से उतर जाते हैं और फिर से वो अकेला रह जाता है. Thousands of people are there around him, but nobody has time to listen to his grief or to understand his mental situation. Nobody is there to share his grief. That means वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, लेकिन किसी को अपना दुख नहीं बता सकता है. कोई भी उसका दुख शेयर करने के लिए तैयार नहीं है. अगर उसका दुख देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ा है. फ्लड्स विल कम. दैट मीन्स बहुत ही बड़ा उसका दुख है कि उसका जो यंग बेटा है वो चला गया है. तो देखिए आगे क्या कहते हैं. Iona sees a house porter with a parcel and makes up his mind to address him. What time will it be, friend? He asks, going on for 10. Why have you stopped here? Drive on. Iona drives a few paces away and bends himself double and gives himself up to his misery. He feels it is no good to appeal to people. But before 5 minutes have passed, he draws himself up, shakes his head as though he feels a sharp pain and tugs at the reins. He can bear it no longer. Back to the yard, he thinks, to the yard. So, friends, अभी वो जिस डेस्टिनेशन पर उन 3 पैसेंजर्स को छोड़ दिया था वहाँ पे खड़ा है और उसे लगता है कि अभी भी यहाँ पे कोई है जो मुझे शायद सुन ले. तो जो कि उसके पास में एक हाउस पोर्टर है पार्सल ले जाने वाला. तो उसे वो अपना दुख शेयर करना चाहता है और वो बोलता है कि बात करने की शुरुआत करता है कि टाइम क्या हुआ है. तो वो बोलता है कि इट्स गोइंग टू बी 10. तो वो उसके साथ बात करने के लिए वहाँ पे खड़ा ही है. तभी वो बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, 10 बजने वाले हैं. तो वहाँ से वो निकल जाता है और अब उसका पेशेंस जो है वो टूट चुका है. अब उसमें बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं बचा है, सहन शक्ति नहीं बची है और उसे ऐसा लगता है कि इट्स द टाइम दैट आई मस्ट हैव टू डिस्क्लोज माई ग्रीफ, रिवील माई ग्रीफ. आई मस्ट गेट रिलीफ फ्रॉम दिस ग्रीफ. इस ग्रीफ से, इस दुख से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए. किसी को तो मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए और मैं ये बात किसी को भी शेयर कर नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई भी मुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है. Iona sees a house porter with a parcel and makes up his. May it do you good, but my son is dead, mate. Do you hear? This week in the hospital. It's a queer business. Iona looks to see the effect produced by his words, but he sees nothing. The young man has covered his head over and is already asleep. The old man sighs and scratches himself, just as the young man had been thirsty for water. He thirsts for speech. His son will soon have been dead a week, and he has not really talked to anybody yet. सो वो बात करना चाह रहा है जो बाजू में पार्सल लेके बैठा है, लेकिन वो जो आदमी है वो उसकी मेंटालिटी समझने के बाहर है. वो सो गया है, इस ठंड में वो सोना चाहता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ. यू हैव ऑल स्लीप इनफ, नो फियर. ही पुट्स ऑन हिज कोट एंड गोज इन टू द स्टेबल्स वेयर हिज मेयर इज स्टैंडिंग. अब क्या करता है वो सब जो कि उसके एक्सपेक्टेशंस थे कि कोई तो मेरा दुख सुन ले, कोई तो मेरा दुख सुन ले, लेकिन कोई भी नहीं है ऐसा जो उसे समझ सके या फिर उसका दुख बांट सके. तो वो क्या करता है, अब अपनी जो घोड़ी है उसे लेके वो उसके तबेले में लेके जाता है और वहाँ पे देखो क्या होता है. ही पुट्स ऑन हिज कोट एंड गोज इन टू द स्टेबल्स वेयर हिज मेयर इज स्टैंडिंग. ही थिंक्स about oats, about hay, about the weather. He cannot think about his son when he is alone. To talk about him with someone is possible, but to think of him and picture him is insufferable anguish. Are you munching? Iona asks his mare, seeing her shining eyes. There munch away, since we have not earned enough for oats.
We will eat hay. Yes, I have grown too old to drive. My son ought to be driving, not I. He was a real cabman. He ought to have lived. Yona is silent for a while and then he goes on. That's how it is, old girl. Kuzma Ionich is gone. He said goodbye to me. He went and died for no reason. Now suppose you had a little colt and you were own mother to that little colt, and all at once that same little colt went and died. You would be sorry, wouldn't you? The little mare munches, listens, and breathes on her master's hands. Yona is carried away and tells her all about it. फ्रेंड्स, अब जब कोई सुनने की मेंटेलिटी में नहीं है तो वो स्टेबल में चला जाता है अपने मेयर के पास और उसे बताता है कि अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे ओट्स खिला सके। तो वो बोलता है कि आज तुम क्या करो, ये जो घास है वही खा लो, हम वही खा के अपना गुजारा कर लेंगे। और उसे बोलता है कि मेरा जो बेटा है वो चला गया है और ये जो टाइम था वो टाइम प्रॉपर नहीं था उसके जाने के लिए। इंस्टेड ऑफ हिम आई मस्ट हैव डाइड, ऐसा भी वो कहता है। मेरे बेटे की जगह पे मुझे मरना चाहिए था, ये भी वो कहता है। और ये भी वो बताता है कि मुझे अब अच्छी तरह से ये टांगा चलाना नहीं आता है या फिर तुम्हारी घोड़ा गाड़ी नहीं चलानी आती है। मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह से चलाता था, इसीलिए हर कोई पैसेंजर मेरी कंप्लेंट कर रहा है। और ये सब कह के वो बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सब वो बात अपनी घोड़ी को बताता है। तो ही फील्स रिलीफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और ये सब बता के एक बहुत ही रिलीफ उसने महसूस किया था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिन लोगों का वो इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग उसका दुख शेयर करें, समझ सके उसके दुख को और वो सुन सके, तो ऐसा कोई भी पैसेंजर उसको नहीं मिला है या फिर कोई भी इंसान उसको ऐसा नहीं मिला है। तो बाद में वो क्या करता है कि अपना पूरा जो दुख है वो अपने ही घोड़ी के सामने बता देता है और घोड़ी उसे बिना किसी रिएक्शन के सुन लेती है। तो इयोना को ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे सुन रही है, मेरे दुख को समझ रही है और एक अच्छा सा रिलीफ उसे यहाँ पे अपने दुख से मिल जाता है। और उसे लगता है कि इतना टाइम तो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। मुझे अपना ग्रीफ जो था वो अपनी घोड़ी को ही सुनाना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी ऑफ मिजरी which is written by Anton Chekhov. So thank you for uh, watching my video. Like, share and subscribe. Thank you very much.